In 10 years, the holy city of Benares or Varanasi has become a Modi bastion. Narendra Modi first chose to contest from the seat in the 2014 Lok Sabha elections. He won by a landslide and repeated the feat in 2019. His third contest from Varanasi promises to be no different. The only debate now is about how big the margin will be. We are in Varanasi, Prime Minister Narendra Modi's bastion. Mr. Modi came here in 2014 with the famous slogan, "Mujhe Maa Ganga ne bulaya hai," and won his first election from Varanasi in 2014 by a margin of nearly 3.7 lakh votes. Come 2019, Mr. Modi's margin only increased to 4.8 lakh votes, one of the biggest victories in the country for any Lok Sabha candidate. This time in Varanasi, Mr. Modi's supporters are saying that he has virtually no challenge and have fixed a target that Mr. Modi should win by at least a 7 lakh vote margin. What is going for Mr. Modi in Varanasi? It's not just that he's the Prime Minister of the country, not just that this is the VIP constituency, but also the fact that the work which has been done in Varanasi, be it the road network, be it the ghats of Ma Ganga, where the revamp has happened, renovation has happened, and you see lakhs of pilgrims coming here, or be it the Kashi Vishwanath corridor, which has transformed Varanasi's major religious attraction, with lakhs of pilgrims coming every year now to pay obeisance to Baba Vishwanath. Mr. Modi this time is citing his governance record in the country as well as his record as an MP in Varanasi, and at a famous meeting with Mr. JP Nadda, the BJP president, had with some MPs earlier this month. Mr. Modi was there also with his report card also on the works he's done in Varanasi and presented it before the BJP president. We will travel in Varanasi and try and understand the Modi factor and what makes people root for Mr. Modi, not as just their MP, but also as the next Prime Minister. On the busy streets of Varanasi, people are in awe of Modi. But some have feedback for the Prime Minister's imminent third term. There's no better place to ask local Banarasis about the elections in Varanasi and Mr. Modi than to come to Master Tea Stall just near the Dashwamedh Ghat here. तो बनारस में वोटिंग होगा आखिरी फेज में 1 जून को. क्या लगता है मोदी जी को कोई चैलेंज है? क्या किया मोदी जी ने बड़ा जो आपको लगता है लोग उसी पे वोट डालेंगे? किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? अरे ऐसा है ना कि मोदी जी को किस मुद्दे पर वोट नहीं डालना है, अपने धर्म के मुद्दे पर वोट डालना है ना. हमारा धर्म अगर आगे बढ़ रहा है तो हमको उनको वोट देना है. और बनारस में विकास काफ़ी हुआ है, हमें दिखता है विकास दिखता भी है यहाँ आए तो. आपको लगता है कुछ और काम हो अगर मोदी जी को दोबारा सांसद आप लोग चुने तो क्या काम बनारस में और होने चाहिए जो आपको लगता भी रहेगा? देखिए, एक तो समग्र विकास इन्होंने किया है, हर क्षेत्रों में किया है, और जो सबसे बड़ी देन है इनकी वह यह है कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा है इसको मोदी जी ने बखूबी निभाया है. कुछ आपको लगता है कुछ कमी रह गई जो इसमें मोदी जी काम करे बनारस के लिए अगले टर्म में अगर बनते हैं सांसद तो? काम तो कोई कमी में नहीं है उनके में. अच्छा. हाँ, काम जो सोचते हैं वो करते हैं और जो कहते हैं वो करते भी हैं. और यही है थोड़ा सा विषय जो महंगाइयों पर चर्चा होती है उस पर ध्यान दे दें, गरीबी बेरोजगारी इसी पे थोड़ा ध्यान दे दें तो जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा है. दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं, कोई चांस नहीं है किसी का क्या मोदी जी के खिलाफ? उनके आगे कोई नहीं है सर. मोदी जी के आगे कोई नहीं है, हम तो यही कहेंगे. जैसे कहावत है ना, कहावत है कि जो है खुशबू आ नहीं सकती बनावट फूलों से, कागज़ के फूलों से, जैसे कहावत है ना, वही बात है. उनके आगे कोई नहीं है. Pitted against Modi in Varanasi is UP Congress chief Ajay Rai.
who has lost the last 3 Lok Sabha elections, each time finishing third. This time he's promising to defeat Modi resoundingly. डेवलपमेंट ही आपका मेन मुद्दा है कि डेवलपमेंट बनारस में अब नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। नहीं, जो हुआ अनियोजित हुआ। भाई एक फैक्ट्री लगी हो, कारखाना लगाओ तो किसी से पूछ सकते हो कोई कल कारखाना कहीं लगाओ। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि भाई DW बना, आप दूसरा DW क्यों नहीं बनाए? दूसरा कारखाना बना देते आप, क्यों नहीं बनाया? आप उसी गेस्ट हाउस में रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं बना आपने। डेवलपमेंट किया, आप चले जाइए, रामनगर में बंदरगाह बना है, पिछली बार आप लोग आए होंगे, बड़ा मोदी जी जोर शोर से उसका उद्घाटन किए थे। रामनगर रालूपुर में बंदरगाह बना है, जाकर देख लीजिए। वहाँ पूरी की पूरी तरीके से वो जितनी मशीनें जंग लग रही हैं, एक भी नॉट अ सिंगल एक भी जहाज वहाँ पर कोई आई गई नहीं, क्योंकि गंगा जी में पानी ही नहीं। आप बनारस में एक रोपवे चलाएंगे, आप मुझे बताइए, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान या दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहाँ पर रोपवे लगी है, सिवाय एक धार्मिक स्थान पर जाने के लिए या पर्यटक स्थल के लिए, कि वो एक सीनरी हो। बनारस में लगा रहे हैं, घर में जो प्राइवेसी होगी, जो घर में अभी पत्नी के साथ बैठा है, अपने बच्चों के साथ बैठा है, वो भी लोग वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाते हुए जाएंगे। ये बनारस में रोपवे बनाकर क्या करेंगे? Also going up against Narendra Modi is comedian Shyam Rangila, who has often mimicked the Prime Minister. Local BJP leaders say there is no threat because Kashi is Modi's family now. वाराणसी को मोदी जी का गढ़ है एक तरह से। 4,80,000 से पिछली बार जीते थे, उससे पहले 3,60,000 से जीते थे। इस बार क्या होगा? कोई शक है कि बढ़ेगा मार्जिन की नहीं? नहीं, निश्चित रूप से बढ़ेगा और पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़े अंतर की जीत होगी। और वो जीत इस कारण भी होगी कि यहाँ के लोग मोदी जी को अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं। और आप जब लोगों से बातचीत करेंगे तो पाएंगे कि लोगों ने एकदम ये पक्का कर लिया है कि मोदी जी को कि पूरे देश की सबसे बड़ी जीत हम लोग दें यहाँ से। आपको लगता है ये काम जो भी मोदी जी ने करके दिखाया बनारस में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है लोगों में? यहाँ वो सेंटिमेंट है कि VIP कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बन चुकी है। तो काशी से लेकर अयोध्या तक आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बही है। तो एक बड़ा कारण है कि आज काशी के मतदाता, जितने भी विपक्ष के कोई पहले चुनाव लड़ने वाले, चाहे 14 का हो 19 को हो, उन्होंने हमेशा नकारा है और जीत का मार्जिन भी बढ़ा है। और इस बार एक नया इतिहास काशी रचने वाली है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या प्रेडिक्शन आपका, मार्जिन क्या रहेगा मोदी जी का? मार्जिन हम लोग 7 लाख के ऊपर मान के चल रहे हैं इस बार। डिपेंड करता है कि वोटिंग में कितनी। हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करें ताकि वो वोट देने के लिए आएँ। कि एक खासियत है कि मोदी जी कभी कैंपेन ही नहीं करते यहाँ पे, बस नॉमिनेशन फाइल करने आते हैं, एक रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, उसके बाद कभी लौट के नहीं आते। इतने आश्वस्त रहते हैं कि यहाँ से जीत सुनिश्चित है। मुझे लगता है आप जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, सबसे ज़्यादा अपनी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले मोदी जी हैं। वो विभिन्न मौके पे आते रहते हैं, वो उन नेताओं में नहीं है जो केवल चुनाव में ही आए। आप लगभग पूरा देखेंगे ज़रा तो सबसे ज़्यादा अपनी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 45 बार आ चुके हैं पिछले, ऐसा कुछ फिगर है अप्रॉक्स 50 तक। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहले यहाँ के लोगों के लिए वो मेरे सांसद थे, अब वो हमार मोदी हो गए हैं। The Kashi Vishwanath corridor remains the showpiece project of Prime Minister Modi, with lakhs of pilgrims coming to the temple every year. Modi has been credited with transforming Kashi both spiritually and physically. तो काशी का जब नाम लेते हैं, इतनी पुरानी, सबसे पुरानी ये शहर है और प्रधानमंत्री 10 साल से यहाँ सांसद हैं, तो तीसरी बार अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको लगता है प्रधानमंत्री और बनारस का क्या नाता है और लोग कैसे देखते हैं उनको बनारस में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के इस महत्व को पहचाना और पहचान कर इस काशी में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यह स्थान साक्षात माननीय प्रधानमंत्री जी के अवदान का एक मूर्त स्वरूप है। मोदी जी एक ऐसे ऋषि हैं कि उन्होंने इस तुलना को समझ लिया कि अब भारत को फिर उठाना है तो भारत कहाँ से उठा था? तो भारत को जोड़ने की केवल एक ही शक्ति है, वो है विग्रह, वह है भगवान। तो वो अहमदाबाद से, गुजरात से काशी आते हैं, इसलिए नहीं आते कि इलेक्शन जीतने के लिए आते हैं, क्योंकि वो एक विजन, एक ऋषि का मतलब है जो कि तीनों कालों को देखता हो। तो पीछे के 2,000-2,500 वर्ष के भारत को देखते हैं और आगे के भी 2,500 वर्ष के भारत को देखते हैं। तो भारत कैसे बन सकता है? जहाँ से भारत बनना शुरू हुआ, उसी खेत से खेती की जाए अगर, तो भारत उठ सकता है। तो मोदी जी ने केवल मंदिर का विकास नहीं किया, मठ का विकास नहीं किया, गुरुकुल का विकास नहीं किया,
अपितु काशी के जो भी विरासत रहे सबको सजाने का, संवारने का। और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि ये पौराणिक नगरी है, वैदिक नगरी है, प्राचीन नगरी है, तो इसकी जो प्राचीन स्वरूप है, उस प्राचीन जो आत्मा है, उस आत्मा को संरक्षित करते हुए काशी को एक नया कलेवर दिया। मोदी जी आगे आएंगे तो इसको और आगे बढ़ा देंगे। एक दो सत्रों में यदि उन्होंने इस काशी विश्वनाथ परिसर को इतना भव्य स्वरूप दे दिया तो गलियां क्या है, गलियां और पनप जाएंगी। ये तो देखिए काशी तीर्थ है, बाबा विश्वनाथ का साक्षात यहाँ पर वास है। यहाँ के कण कण में हम भगवान को देखते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से चलते हैं। मोदी जी अहमदाबाद से यहाँ आए, वो स्वतः नहीं आए होंगे, बाबा विश्वनाथ ने स्वतः प्रेरणा देकर उनको यहाँ लाकर बैठाया और उनसे अपने लिए ये कार्य करवाए हैं। He has the blessings of Ma Ganga and Baba Vishwanath. This is what locals in Varanasi tell us about their two-time MP, the Varanasi candidate and the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Speak to locals here in Varanasi and they say that Mr. Narendra Modi is not just their MP, not just their candidate, he's truly become the son of the soil of Kashi by working tirelessly for this constituency in the last 10 years. Mr. Modi has visited Varanasi almost 50 times in his last 10 years as the MP. People here say he's worked both for Astha as well as for development. Astha for projects like Kashi Vishwanath Corridor, where I am presently, and projects of development like expressways, hospitals, and a new ropeway which is coming up in Varanasi. Nobody has been able to even coming close to challenge Mr. Modi. In the last two times the fights were here in the Lok Sabha. This time also Mr. Ajay Rai from the Congress party is challenging him. But Ajay Rai has finished third both in the last two elections. Can Ajay Rai pose a significant challenge to Mr. Modi? As contesting as the Samajwadi Party Congress candidate, people here are not giving anybody a chance against Mr. Narendra Modi, and he looks set for a huge victory of over 7 to 8 lakh vote margin that the BJP says he will achieve this time. Coming up after the break, we travel to the part of Uttar Pradesh which has been synonymous with the Gandhi Parivar. But when it comes to Amethi and Raebareli, there's always something to munch about. It's not that these are the only two family constituencies in the country. There are many such. But I think what sets these two places apart is the fact that it seems to have been caught in a kind of a time gap. While it also talks about calm or the need for development, the naam or the name also becomes important, which is why a BJP would always want to unseat a Gandhi from here. A battle over here has a huge resonance on the larger national political narrative. Amethi and Raebareli have occupied a special place in India's political discourse. They were called the PM constituencies. After all, two prime ministers, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, made their electoral debuts from here, as well as PM aspirant Rahul Gandhi. But all that changed in 2019 when giant killer Smriti Irani defeated Rahul Gandhi in the so-called Gandhi bastion of Amethi. This time around, Rahul Gandhi chose not to bite the bullet and opted to contest from his mother's seat of Raebareli instead of Amethi. From a sleepy town with little or no development, Smriti Irani brought Amethi to life, while constantly reminding the public that Rahul Gandhi did nothing despite being their MP for 15 years. To recognize that this is a place which has had 50 years of the Gandhi family and just 5 years of me. So it's 5 decades versus 5 years. 5 decades. So that's a new tagline. Well, that's the reality. It's not a tagline. And I think that today there is a comparison that people do that if Smriti Irani could do so much work only in 5 years, what possibly in some way debilitated
the Gandhi family from doing the same amount of work. So imagine the generations that have lost opportunities in Amethi only because they had an incapable leadership in the Gandhi family. The Gandhis have passed the Amethi baton to trusted lieutenant and Sonia Gandhi's campaign manager, Kishori Lal Sharma. खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है. Congress and the Gandhis countered the criticism by focusing on their family ties with Amethi. आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे. आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं. अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं. इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है. मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया. But the people of Amethi have moved on from the Gandhis. देखिए, अब अनाउंस अब हो गया. यहाँ पे स्मृति बनाम किशोरी लाल शर्मा होंगे. यहाँ पे क्या आपको लगता है अगर स्मृति बनाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव होता तो और दिलचस्प होता? और क्या आपको लगता है गांधी परिवार ने अमेठी को त्याग दिया? गांधी परिवार अमेठी को त्याग दिए, इसलिए अमेठी वालों को कष्ट है. उनको आना चाहिए था. चुनाव और परीक्षा में दो परिणाम आते हैं, पास और फेल, और चुनाव में भी जीत और पराजय. तो एक बार पराजय ही हो गया, अमेठी उसको महसूस किया. उनको दोबारा आना चाहिए था. आपको लगता है कि यहाँ से गांधी परिवार का जो कोई नहीं लड़ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया? क्योंकि उनका कहना ये भी है कि केएल शर्मा या किशोरी लाल शर्मा भी गांधी परिवार से जुड़े हैं. गांधी परिवार से जुड़े कह रहे हैं, लेकिन जुड़े नहीं हैं. जुड़े नहीं हैं. हाँ वही है, सही कह. लड़ना चाहिए था. हाँ, आपको लगता है कि उन्होंने त्याग दिया है, गांधी परिवार ने अमेठी को छोड़ दिया? अमेठी को छोड़ दिया, त्याग दिया. नुकसान होगा अमेठी का इससे? नुकसान का गांधी परिवार का हो रहा है, अमेठी का नहीं. अमेठी का नहीं नुकसान हो रहा है. अमेठी क्यों नुकसान होगा? नहीं, मतलब अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है. अरे जो आएंगे अब जिंदगी भर अगर नहीं रहेंगे तो क्या अमेठी रहेगी? नहीं, अमेठी रहेगी. हाँ, कोई भी आएगा ना, स्मृति ईरानी जिंदगी भर रहेंगी कि वो रहेगी तो उसके बाद और कोई नहीं. अमेठी अमेठी ही रहेगी. अमेठी अमेठी ही रहेगी. Nonetheless, there is a sense of betrayal over Rahul not fighting from his former constituency. अमेठी की खास बात यह है कि हम अपनों से भी प्यार करते हैं, जो बाहर वाला आता है उससे भी अपना ही पन दिखाया. गांधी परिवार को हम लोगों ने अपना परिवार की तरह माने, जिताया, लेकिन आज तक यहाँ डेवलप कभी नहीं कर पाया. अगर आज जैसे स्मृति ईरानी धीरे धीरे विकास हो रहा है, जैसे स्मृति ईरानी यहाँ का विकास कर रही हैं, अगर आज गांधी परिवार चाहता तो आज ग्रेटर नोएडा और लखनऊ आज अमेठी बना हो. आपको बुरा लगता है कि गांधी परिवार यहाँ से नहीं लड़े? आपको लगता है उनको लड़ना चाहिए था? उनको 100% लड़ना चाहिए था. अगर आपको अमेठी की जनता ने एक्सेप्ट किया तो आपकी कमियों की वजह से एक नाराजगी थी जो आपको हल्का सा झटका मिला, लेकिन आपकी आप खड़े होते तो आपकी आप जीतते. अमेठी की जनता चाहती थी. नहीं, आपको लगता है, अब यही सवाल जो मैंने इनसे पूछा, गांधी परिवार का और कांग्रेस का कहना ये है कि हम भले ही यहाँ से नहीं लड़े, हमारा लगाव अमेठी के साथ हमेशा रहेगा, और केएल शर्मा जो हैं वो परिवार के सदस्य हैं. और दूसरी बात ये है कि रायबरेली से राहुल गांधी तो लड़ ही रहे हैं, बगल में है. अब बगल में है तो, लेकिन यहाँ से तो है नहीं. वो लड़ना चाहिए था उनको यहाँ से लड़ना ही चाहिए था. भाई क्या कहते, यहाँ लड़ना चाहिए था. बताते तो परिवार है, लेकिन परिवार को फिर अंधकार में छोड़ के चले गए. पिछली बार तो यही हुआ, उन्होंने यहाँ से दाखिल किया, उसके बाद जाके क्या कि जब परिवार के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं था तो वायनाड क्यों चले गए थे आप? आपको लगता है गांधी परिवार के बिना लोग अमेठी को भूल जाएंगे? नहीं नहीं, गांधी परिवार के अमेठी शुरू से चमका है. अमेठी के लोग यहाँ चमके हैं. अमेठी के लोग यहाँ, जैसे गांधी परिवार में हमने राहुल को चमकाया, ऐसे आज हम बीजेपी से स्मृति ईरानी को चमकाकर
तारीख ये है खास बात चुकवाएंगे। अमेठी का। अमेठी की खास बात ये है, अगर आप हमें प्यार देंगे हम आप पर अपनी जान निछावर कर देंगे। तो गांधी परिवार के बिना भी अमेठी ठीक रहेगा या गांधी परिवार को लोग भूल जाएंगे क्योंकि अमेठी के लोग गांधी परिवार को भूल जाएंगे? अमेठी के लोग तो गांधी परिवार को भूल जाएंगे, लेकिन अमेठी याद रहेगा। अमेठी याद रहेगा। स्वयं राहुल जी ने कहा कि वो शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। While Amethi won't witness a Rahul versus Smriti rematch, neighbouring Raebareli is thrilled. Barring 2 short breaks, the seat has been with the Gandhi family since 1952. This was the seat where Indira Gandhi's legacy can be felt the strongest. The seat which her daughter-in-law Sonia Gandhi held for 20 years before going the Rajya Sabha way. राहुल गांधी रायबरेली से क्यों, अमेठी से क्यों नहीं? ये विशेष एक ऐसी विधानसभा जो है लोकसभा सीट है जिससे पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होती है रायबरेली की, और रायबरेली इतना मुख्य क्षेत्र उनका है कि जिससे एक बार वो अगर नामांकन करने ना भी आते और कहीं से नामांकन करवा दिया जाता तो यहाँ से उनकी सीट निकल जाती। तो ये बात तो राहुल गांधी पे भी लागू होता, वो तो वहाँ के सांसद रह चुके हैं अमेठी से, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ से लड़ सकती थी ना? नहीं, लड़ सकती थी। और प्रियंका जी को ऐसा नहीं है, प्रियंका जी को हम लोग पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने इतनी मेहनत किया है और उन्होंने अपने एक छवि को इतना तेजी से उभारा है कि अभी तक मान के चले कि इतने नेताओं में तो ये बात प्रियंका गांधी पे क्यों नहीं लागू होती? वो भी तो लड़ सकती थी ना प्रियंका की, क्योंकि प्रियंका जी का एक परिवार है, वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ कहीं न कहीं बंदी है, लेकिन राहुल जी इस वक्त जो है एक स्वच्छंद वो है। आपको नहीं लगता प्रियंका गांधी को यहाँ से लड़ना चाहिए था? नहीं, प्रियंका गांधी अभी नहीं लड़ने के लिए तैयार है यहाँ के लिए, राहुल गांधी का यहाँ पर महत्व ज्यादा दिया जाए। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। While a seemingly reluctant Rahul Gandhi chose Raebareli, his younger sister Priyanka Gandhi avoided taking the electoral plunge yet again, leading to more questions than answers. The critics point out that, this is Amethi and Raebareli, it belongs to a Gandhi family, and even if we come in late or kuch bhi kare, yahan ke people will never ever forget us. No, I think it's just plain cowardice. Because that's what happened, you think, in Amethi, why Rahul Gandhi lost in 2019? They took it for granted. Do you think they tend to take it for granted? No, I think it's because he got himself a second seat. You think that worked against him? And do you think that's also one reason why he seems to be reluctant? As I said, they need to show more bravery. One last question. Priyanka Gandhi Vadra has a very good equation with your son. But do you think it's time that she enters into active electoral politics rather than just being a campaigner for the party? Pallavi, in order to enter into active politics, you have to have a passion for the country, some knowledge of what you want, some background of work. It's not about photo ops. Has the sheen been taken off by no one from the Gandhi family contesting from Amethi? Well, this is one constituency which many people recognize even outside of Uttar Pradesh. The BJP certainly sees this as a big betrayal. But for the Congress party, the argument is the family stamp will never get away.